Okay, so we are live again. We, okay, I don't have any request, but I'll send request. Request. Okay, I believe sir join कर लेंगे हमको. Whoever have joined अभी तक, they should know that this is a session on prosthodontics and implantology, and Dr. Sufyan will be with us from Kuwait, and he'll be teaching us. He'll be telling us his story, that how he started all of the journey, and sir ने भी ज्वाइन नहीं किया है. Okay, sir is here. Okay, request is here. I've accepted the request. Okay, sir is here. Hello, Doctor. I'm so sorry for the disturbances. Yeah, I think there are some technical glitch. Right. Right, our account savvy, but it was not going. Right, sir. How are you doing? Very well, sir. Very well. Let me introduce you first, क्योंकि हम technical problems की वजह से introduce नहीं कर पाए. So, Dr. Sufyan is with us, and he is someone जो मेरी लाइफ में आया थ्रू डॉक्टर रवि पांडे. इसी वजह से भी से कि आप सब लोग एक दूसरे के मेंटर्स को, एक दूसरे के फ्रेंड्स को, एक दूसरे के हीरोज को आपस में एक दूसरे से शेयर करें. Dr. Ravi is very fond of Dr. Sufyan, as I am now. So I want all of you to learn from him. So आज बहुत बड़ा सेशन नहीं होगा जैसे रॉन रियल का होता था, टू बी ऑनेस्ट. और सर इंडिया आ रहे हैं. मैं पहले आपको बता दूं कि सर इज कमिंग टू इंडिया फ्रॉम कुवैत, एंड डॉक्टर रवि के साथ उनका प्रोग्राम हो रहा है. इफ यू वांट टू लर्न फ्रॉम हिम, इट्स अ गोल्डन चांस, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, सो यू कैन जॉइन इन. सो सर, बहुत सारी चीजें पूछने को, बट मैं सिंपल आपकी जर्नी पहले जानना चाहता हूँ, बिकॉज देयर आर वेरी फ्यू पीपल जो इस तरीके से पीडीएस एमडीएस करके आउट ऑफ इंडिया बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर पा रहे हैं. सो यहाँ पे काफी फ्रेशर्स हैं जो ऐसी ड्रीम रखते हैं. सो आई वांट यू टू गाइड देम ए लिटिल बिट कि कैसे. पहले तो हम आपकी जर्नी जानना चाहते हैं. हाउ वाज योर जर्नी? या पहली बात तो थैंक यू सो मच फॉर दैट लॉन्ग इंट्रोडक्शन. I also got to know Dr. Sagar through Dr. Ravi. उनसे ही मुलाकात हुई थी. And it's always a pleasure to be associated with you. It's my honor to be here on your page. Thank you so much for that. And to start, बहुत सारे मेरा भी यही it was a dream kind of thing that मुझे पता था कि मैं इंडिया में प्रैक्टिस ज्यादा देर नहीं करूंगा. इमीडिएटली मे बी 1.5-2 years ऑफ एक्सपीरियंस लेके, जो मिडिल ईस्ट में जैसे एवरीवेयर इन द मिडिल ईस्ट दे आस्क एटलीस्ट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस मिनिमम इन द स्पेशलिटी. सो आई डिड दैट 2 years ऑफ एक्सपीरियंस आई टुक दैट. और उसके बाद like every Middle East country, Kuwait also, I am staying in Kuwait, and every Middle East country की जैसे सऊदी हुआ, UAE, Muscat, and Kuwait and Bahrain also. Every Middle East country has their own Ministry of Health exam. Okay, what differs is Kuwait में कैसा है? First we need to get a job offer, then we are eligible to write an exam, unlike others. But in other countries, first आपको एग्जाम क्लियर करना है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ का. उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन. आफ्टर दैट simultaneously you can search a job for that. But unlike this, Kuwait was not there. Kuwait was opposite. So I was keen in working in Middle East because that was the easiest opportunity for me to travel through India. Because other countries जैसे European countries or Australia or US, Canada, so these are also opportunities, but then we need to our degree BDS and MDS won't be accepted there. Again, we need to get a different degree there, or we need to write an exam. So for my first stop was this one, so that's why I chose Middle East. And journey was not that easy, बोल सकता हूँ, but if you really want to go, then you have all the stages to go through. First is experience, then
उसके बाद जॉब ढूंढना चालू करो. विच आर द क्लिनिक्स वेयर देर आर मेनी वैकेंसी जो जॉब प्लेसमेंट्स वाले हैं. और फेसबुक और गूगल तो है ही. देर आर मेनी एड्स एंड लिंक्डइन इज वन प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन सर्च फॉर जॉब. एंड आपके प्रोफाइल पे यू कैन tag as looking for job also. So आपके प्रोफाइल पे there will be a tag there. So LinkedIn is one good platform. And clinic approaches you, that's also well and good. And if you take an exam from your side, after you clear an exam, then you can put it in your CV and then approach the clinic that I'm interested in working in your clinic or your hospital. So they will guide you through the process. So this is how it went through, and whole process मेरा जैसे था. In fact, I started applying for the jobs. What I used to do basically was search for just Google पे जाके vacancies, job vacancies, prosthodontic vacancies in Middle East or Kuwait, UAE, and UAE maybe Dubai, Abu Dhabi, Sharjah. All those things I used to search. Whichever I used to get the vacancies, I used to send my CV and work portfolio. So it took me around 8 months or 10 months later, I got a reply from the clinic which I'm working here. I'm not changed the clinic here, so it's the same clinic which I started since 2017. So I got a reply from them, and the journey started. Yes. Okay. Going on that thing. The only criteria for them is super specialities or after MDS, or they give jobs to BDS people also? Yeah, BDS people भी है, पर ज़्यादातर BDS अगर है तो they will ask at least 6 to 7 years of experience. So this is what the criteria, at least in Kuwait. But in other Middle East में there are job opportunities, but then again if you go on BDS without experience, if at all you get an opportunity also, I would not suggest to. Why? Because the pay will be very less. Okay, and the standard of cost of living will be very high. So you can't save as much of money what you are looking for, and after you have been shifted here. So it's my advice to get experience and then apply and come over here. That will be a good thinking. Right, sir. Right, sir. Sir, जैसे prosto में we can see that how fond you are of prosto you are. जब हम आपका काम देखते हैं तो वो happiness होती है ना, एक वो पता लगती है कि you are excited about doing perfect crown preparation, perfect work. So आप काफी लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो MDS करना चाहते हैं, बट इस वजह से क्योंकि कोई और भी करना चाहता है. ये बात हम लॉ रियल में बहुत डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं आपका पर्सनल पर्सपेक्टिव जानना चाहता हूँ कि प्रोस्तो के लिए जो आपका लव एंड एक्साइटमेंट था, वो उसने आपको ये जो फील कराया कि ओके आई वांट टू डू MDS इन दिस, ये इस तरीके का पैशन होना चाहिए अंदर टू चूज द सर्टेन सब्जेक्ट. और अगर वो सब्जेक्ट नहीं मिलता है कभी कभी तो बिल्कुल स्किप इट कि ओके ये नहीं तो ये. इज इट राइट और नॉट? सी मेरे लिए एज यू टोल्ड प्रोस्तो तो मेरा पॉइंट सब्जेक्ट था, एंड आई थिंक फाइनल ईयर तक मैं डिसाइड कर लिया था आई विल बी गोइंग इन रिहेबिलिटेशन डेंटिस्ट्री ओनली. सो प्रोस्तो वाज वन फील्ड, एंड व्हाई प्रोस्तो आई चूज, आई लाइक लैब वर्क में जो so many artistic work जो होता है, I used to like that. So that is one main reason that I chose this one. And third year से जैसे ही प्रोस्तो का पेशेंट का काम हुआ है तो फिर प्री क्लिनिकल all those things I used to like. So first thing is you need to like the subject, whichever subject you are dealing with. Ultimately again it comes to a specialty practice or a general practice you do, ultimately you will be loving dentistry. Whichever specialty you choose, it is interrelated. All the specialties are interrelated, and prosto is a wonderful specialty where you will be dealing with all the other specialties. So you'll be linked. So that is one plus point of it, and we'll be replacing teeth and oral structures, and then the instant gratification we get from the patient is very much important. So and that वो मोटिवेट करता है कि we need to give a little more, and that drives us towards the betterment of the treatment. Yes, right sir. जैसे बेसिक वेज मैं आपसे सीखता रहता हूँ टू इम्प्रूव प्रोस्तो. क्या होता है कि प्रोस्तो का ना एक सर्टेन इंडिया में
लिमिट बनी हुई है कि इतना इज ओके. फॉर एग्जांपल, Yeah. if you are doing Yes. crown preparation and you are taking alginate impressions, that is Yes. okay. You don't need to, shift to good labs, or you don't need to shift to good impressions or different Correct. techniques or Correct. retraction core techniques. People are not Correct. excited to learn all of that because लगता है कि कैप ही तो है, क्राउन ही तो लगा देंगे, Correct. चल जाएगा, हो जाएगा. इस ये चीजें इम्प्रूव करने से कितना प्रैक्टिस इम्प्रूव होती है. आई वांट पीपल टू लर्न फ्रॉम यू. Yeah. See, prosto ऐसा field है, unlike other fields also, other specialities, we have so many material sciences included in our day to day. So बहुत सारे materials, as you said, जैसे impression भी हुआ, impression में alginate है, alginate में बहुत तरीके के alginate है. We see path setting, flow setting, color changing हुआ, and then impression material, silicone based impression material. Every stage of prosthodontic treatment you go, you will be having so many materials. And you should, when you like the subject and when you like the specialty and when you like the work, then you will tend to explore. Even though I know many of my friends who are in different specialties are different general dentists है जो like prosto work a lot. So Right. they keep trying more than me. They keep trying this kind of things. And जैसे the basic चीज अभी बोलेंगे तो फिर impression is a basic चीज आप जैसे बोल रहे थे. So if impression is good, then all the other steps carry on हो जाता है. And Right. our department, our specialty deals most of the things with lab. So associated with one of the good labs is very much important. और patient our work won't be seen. जैसे अभी crown preparation हुआ, crown preparation won't be appreciated by patient. The crown which we give from the which comes from the lab, that is what the patient sees. और ये जब Yes. दिखता है, and they'll have a happy feeling. So we need to be very much associated with अच्छा lab, and और उनके साथ communication बहुत important है. And ऐसे नहीं, we don't need to just order them to do this work. That kind of rapport won't help. So we should have a friendly conversation. और ओपन रहना है उनके व्यूज को. भले ही हम जस्ट एन एग्जांपल, वी एनी क्राउन प्रिपरेशन वी डू, एंड हम लोग इंप्रेशन भेज देते हैं बाइट विदाउट बाइट के, जस्ट वील आर्टिकुलेट रबर बैंड में जैसे डाल के वी जस्ट सेंड इट. एंड टेक्नीशियन के पास जाने के बाद देन ही विल गिव अस अ कॉल सेइंग सर आर्टिकुलेशन में प्रॉब्लम है, बाइट रजिस्ट्रेशन दे दो. ठीक है. So then what we think how can he advise us a white registration? Why? How can he tell me to do this? And we'll also think कि और एक बार patient को बुलाना है, अरे ठीक है यार, go ahead with it, no problem, I'll manage. And it will be like and we go and we tell him and he'll go ahead, and then ultimately जब crown आएगा there will be so much of discrepancies, then we'll ultimately blame him for the work. So this is just an example. So we should be open to take his opinion and take his guidance. What do you think? Okay, clearance कम है, what do you think? Monolith जाना है या फिर PFM जा सकते हैं, metal और porcelain का combination जा सकते हैं, monolith काफी है, या and he might tell okay fine sir, ऊपर में plunger का जैसे लग रहा है, maybe little bit of enamel plastic करो, थोड़ा आपको space मिल जाएगा. So all these things when you discuss with him, so lab will be lab communication is very important. और retraction cord जैसे बोल रहे थे, finish lines are very much important. These are the where the crown goes and sits, crown and bridge work हुआ, the denture work भी हुआ. Age patient के साथ हम लोग deal करते हैं, and they'll be seen whole their life, and the instant gratification what they give after the denture. So वो एक अच्छा सा एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन हो जाता है. बिल्कुल सर. इनफैक्ट मानोगे नहीं कि काफी साल तक मेरी प्रैक्टिस में भी प्रोस्टो पार्ट काफी इग्नोर्ड रहा. और जब मैंने उसका, क्योंकि ऐसा होता था कि जब whenever you are with the group of people who are doing similar kind of practices, and mostly they are your friends, so you do similar things. But when I started, I would like to quote the name that Dr. Saurabh Varshney came into my life. He guided me कि भाई ऐसे नहीं, ठीक है, आपसे भी तो मैं एक्स्ट्रा अब इस लेवल पे और एक्स्ट्रा लेवल पे पहुंचा. बट बेसिक लेवल पे उन्होंने ये चीज बतानी शुरू की भाई कि नहीं, ऐसे काम नहीं करना है, ये नहीं कि ऊंचा हो गया है तो ट्रिम कर देंगे. और अभी भी आई वुड से कि more than 50% of dentists in India are doing this.
कि क्योंकि पेशेंट्स को वो हैबिट है, पेशेंट्स खुद बताते हैं कि क्राउन अभी लगा है तो खुद ही बोलते हैं कि वो कुछ दिन में एडजस्ट हो जाएगा। उनको कैसे पता? Correct. क्योंकि उनको Yes. पिछले डेंटिस्ट ने यही बोल के भेजा, राइट? या कभी मैं एक्स्ट्रा मटेरियल निकालता हूँ, जैसे जो जीआईसी फ्लो हो गया, अगर गलती से एक्स्ट्रा हो गया तो आई टेंड टू रिमूव दिस फ्रॉम द जिंजाइवल सर्कल, बिकॉज़ आई हैव सीन पीपल जो बहुत पेन में आए मेरे पास बिकॉज ऑफ दिस। बट जब हम निकालते हैं तो पेशेंट कहता है कि सर पिछले डेंटिस्ट ने तो बस कॉटन को प्रेस करवाया एंड दे सेड कि आप जाइए। तो ये कंडीशन बहुत ज्यादा है एंड आई वांट कि फ्रेशर्स इस चीज को बहुत ध्यान से समझें। ये सोचना कि क्राउन लगा दिया, पैसे आ गए, मार्जिन बहुत था बीच में, अपने जेब में पैसा चला गया, 300-400 रुपए लैब वाले को दे दिए, ठीक है, हो गया अपना काम, इससे आपकी लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस बिगड़ती है क्योंकि पेशेंट वापस होता है and most of the patient they might not come back to you. Yes. अरे पैसे दे दिए and ये हो गया, अभी पता नहीं वापस जाएंगे and he has not done the good work, so then they will go to next dentist and then वहाँ पे आपका work reflect होगा and उसके बाद क्या होगा, that will be a bad experience and word of mouth से then it will start spreading. Long term पे बहुत affect करता है, that is true. I agree. Right. I want people to attend or if is being posted एक कन्वर्सेशन जो आपकी और अभी डॉक्टर रवि की हुई अबाउट आर्टिकुलेटिंग पेपर्स, और आई बिलीव और भी कन्वर्सेशन हुई, तो ये भी बहुत डेलिकेट, बिकॉज इंडिया में आर्टिकुलेटिंग पेपर्स की वैल्यू नहीं पता है मुझे। मैंने डॉक्टर रवि से डिस्कस ज्यादा किया, आपसे भी कराया मैंने, तो आप मान के चलिए कि लोग कार्बन पेपर से काम चला रहे हैं कि कार्बन पेपर लगा दिया, जो मार्क आ गए ठीक है, हो गया, ट्रिम कर दिया, और कोई भी लैब में वापस देने को राजी नहीं है क्राउन को। सैंड ब्लास्टिंग कर रही है क्राउन्स पे लैब्स। दीज आर स्मॉल थिंग्स जो इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, फिर आप रिपीट करो, और रिपीट करने में देयर इज वन पर्सन जो मेरे क्लिनिक पे शाम में आ रही है टू लर्न फ्रॉम मी, राइट, एंड शी ऑब्जर्व्ड इन क्लिनिक जो मॉर्निंग में जहाँ जाती हैं कि क्राउन रिमूवर से क्राउन निकाला गया, और अच्छा ट्रस्ट मी, मैंने जिस दिन पहली बार क्राउन रिमूवर से क्राउन रिमूव करते हुए देखा था लोगों को, उस दिन मैंने वो क्राउन रिमूवर फेंक दिया था कि मैं इसको या तो कट करके निकालूंगा या नहीं निकालूंगा। आपको अगर क्राउन ज्यादा प्यारा है तो कोई बात नहीं, चाहे एलए दो चाहे कुछ भी दो, ट्रॉमा इज हॉरिबल। सो पेरोडोंटल पे बहुत ट्रॉमा होता है एंड दैट माइनर मूवमेंट्स इन द टूथ व्हेन वो लाइक से क्राउन रिमूवर यूज करते हैं एंड दैट विल बी वेरी माइनर मूवमेंट एंड वी वोंट बी गेटिंग टू नो। और कई बार अगर रूट कैनाल ट्रीटेड टूथ है एंड यू आर ट्राइंग टू मिसफिट क्राउन को निकाल रहे हो, there will be many almost 80-90% that core structure आ जाता है उस पे and you will end up with the loss of tooth structure, और उसके बाद फिर consequences. I agree. बिल्कुल बिल्कुल, ये सब चीजें सर ऐसी माइनर चीजें हैं जो मैं चाहूंगा कि जब आप इंडिया आए तो, क्योंकि मे भी आपको आप काफी साल से नहीं है तो आपको लग रहा होगा शायद कि उस लेवल पे इंडिया पहुंच गया है जो दिख रहा है मीडिया में, बट स्टिल डेंटिस्ट्री में काफी ऐसी चीजें हैं जो बहुत खराब लेवल पे बहुत सारे मेजर के डेंटिस्ट कर रहे हैं। मतलब आप क्राउन रिमूवर से रिमूव कर रहे हो या आप आर्टिकुलेटिंग पेपर यूज नहीं कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि पट्टी भी यूज होती है इम्प्रेशन में, पता ही नहीं है, अंदर से प्रैक्टिस में यूज नहीं कर रहे हो। लाइट बॉडी आप क्राउन एंड ब्रिज के लिए अल्जिनेट यूज कर रहे हैं, दिस इज व्हाट आई हैव सीन। यस, दैट इज नॉट एडवाइजेबल। यस, जिरकोनिया क्राउन्स के लिए अलग सीमेंट आता है, पीपल डोंट नो दैट, उसी सीमेंट से सीमेंटेशन हो रही है। These are small things जो I want कि आप जब डॉक्टर रवि के साथ आए तो जरूर बताएं। I believe कोई कमेंट हमारे पास है डॉक्टर रवि का ही है, people do crown remover not to remove crown but to extract the tooth unintentionally. Maybe they are planning for the next treatment. अरे निकल गया क्राउन, अभी एक्सट्रैक्ट करवा लो। राइट सर, इम्प्लांट्स के बारे में थोड़ा मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि काफी लोग इंडिया में इम्प्लांट्स करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हो कि उनको पैसा कमाना है, इसलिए चाहते हो कि उनका पैशन है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट चाहते हैं इम्प्लांट्स के लिए फ्रेशर को, क्योंकि बीडीएस पे ऐसा नहीं अलाउड नहीं है टू डू इम्प्लांट्स, इफ दे कैन डू इम्प्लांट दे कैन ऑब्वियसली, व्हाट डू यू थिंक, हाउ शुड दे प्रोसीड एंड वेयर दे शुड लर्न? मतलब ऐसा है कि लोग ऑनलाइन भी लेक्चर्स ले रहे हैं, लेक्चर्स तो हम नहीं बहुत रही है, बट वो प्रैक्टिकल नॉलेज एटलीस्ट कितने इम्प्लांट्स करने चाहिए, किस तरह का कोर्स होना चाहिए, कैसी प्लेस होना चाहिए, कौन कौन से केसेस कर लेने चाहिए, उसके बाद यू शुड स्टार्ट इम्प्लांट्स। इम्प्लांट प्रैक्टिस एक स्पेशलिटी प्रैक्टिस है, आई एग्री, एंड इंडिया में अपने करिकुलम में इम्प्लांटोलॉजी अलग से डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों? इट इज अ मल्टी स्पेशलिटी इन इटसेल्फ।
इम्प्लांट इज अ डेंटिस्ट्री में हर एक चीज में आता है. इट्स नॉट दैट इट बिलोंग्स टू वन स्पेशलिटी. सो एनीबडी कैन डू दिस, बट ओनली थिंग इज दैट यू नीड टू, एज आप बता रहे थे अभी, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है. उससे पहले कोचिंग बहुत जरूरी है, एंड यू नीड टू हैव वेरी थरो नॉलेज. बेसिक इम्प्लांट सिर्फ नहीं है, एडवांस इम्प्लांट भी लेना है बिफोर यू स्टार्ट बेसिक. भले ही आप सिंगल इम्प्लांट डाल रहे हो, यू नीड टू नो कंप्लीट सर्जिकल प्रोटोकॉल. भले ही सिंगल इम्प्लांट में आइडियल सिचुएशन में, आइडियल पोजीशन में डाल रहे हो, यू नीड टू नो ऑल द ग्राफ्टिंग प्रोसीजर्स, यू नीड टू नो all the, अगर अपर कर रहे तो साइनस लिफ्ट प्रोसीजर. yes, why you need to know all these things? There might be complications in future for that implant which you have placed, so you need to be, आपको ready, you need to be ready for that situation. तो I suggest to have अच्छा वाला एक fellowship वाला जो कोर्स होता है. Okay, so they will cover all these topics over a period of time. It's not like the 1 or 2 days it will take. It should be like 1 week continuous or a 1 month or repeated module. Surgical modules अलग है, implant prosthetic modules अलग है, grafting के अलग modules है. So these are the various, हर एक चीज को आप सीखने, जैसे हम कोई भी स्पेशलिटी हम लोग सीखते हैं तो it take 3 years to finish, right? And जब भी हम लोग जनरल डेंटिस्ट्री भी सीख रहे हैं, and it will take so many of our hours to get hold of it. So I say implant is not like 1 day course you attend and then you start practice. No, after you do a fellowship, after you do a mentorship also, you need to work. आप किसी के अंडर काम करो, see that person, experienced person का काम जैसा है, at least 15 to 20 implants in different situations, basic से लेके advanced procedure तक. उनका way of, everybody have their own way of doing things. तो जैसे हम लोग मेंटरशिप के लिए देखते हैं मेंटरशिप के लिए जाते हैं, तो we see so many small tricks and tips and how he handles the patient, how implant prosthetic module हुआ, prosthetic surgical हुआ, how he does. So हर एक चीज, if you have opportunity, 2-3 लोगों के साथ अगर आप जुड़ रहे हो तो just to go and watch, that will be very well. So I'd advise to do this and then start with basic केसेस. जैसे एफपीडी केसेस को, सिंगल टूथ एफपीडी केसेस को आप इम्प्लांट में कन्वर्ट कर दो, इमीडिएट इम्प्लांट कर दो नॉन एस्थेटिक जोन पे या मोलार पे. मोलार इज अ वेरी गुड एरिया टू स्टार्ट विद, एंड अपर प्री मोलार्स आल्सो इज अ वेरी गुड प्लेस टू स्टार्ट. 2 रूट होता है तो फिर इन 1 रूट यू कैन प्लेस. सो ऑल दिस थिंग्स यू नीड टू नो, एंड yes, I'd encourage people to do implant, go for implantology. Yes, right. Sir, ये बहुत अच्छा टॉप पॉइंट आपने बोला कि मैंने देखा है कि ओरल सर्जन से इम्प्लांट सीखा तो बस सर्जिकल पार्ट आ गया आपको, correct. राइट? No, या आपने प्रोस्टोडोंटिस्ट से सीखा तो शायद आपको प्रोस्टो पार्ट ज्यादा अच्छा आ गया. बट बहुत अच्छी बात आपने बोली कि तीनों पार्ट आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं. पेरियो हेल्थ को जानना, उसके बाद सर्जिकल भी, जैसे सीरी का भी मॉड्यूल था मेरी वाइफ का, उसने कॉलेज में पूरा 1 साल का मॉड्यूल था, उसमें 10 इम्प्लांट्स थे, उसमें भी डिफरेंट इम्प्लांट्स थे, साइनस लिफ्ट भी था और बोन ग्राफ्टिंग भी था और फिर प्रोस्टो पार्ट भी था. तो एवरी पार्ट वाज देयर. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जितने प्रिसाइजली भी शी वर्क्स और इंप्रेशंस वगैरह में वो जिस तरह से चेक करती है और लैब से बात करती है, मुझे तब समझ में आता है कि कितना ज्यादा डेलिकेट और प्रिसाइज चीज है. yes, precision is very much. जैसे हम लोग सिंगल इम्प्लांट भी कर रहे हैं, पहले हमको प्रोसेसेस डिसाइड करना है, कौन सा टाइप ऑफ प्रोसेसेस दे रहा है, अबटमेंट डिसाइड करना है, कास्टेबल दे रहे हैं, स्टॉक अबटमेंट दे रहे हैं, जिरकोनिया अबटमेंट दे रहे हैं या फिर हाइब्रिड अबटमेंट दे रहे हैं, मिल्ड अबटमेंट दे रहे हैं. तो इसके हिसाब से वी विल गो अहेड विद प्लानिंग द इम्प्लांट सर्जिकली. अगर उसको डीप डालना है या फिर मीजियली टिल्टेड, डिस्टली टिल्टेड, सो ऑल दिस थिंग्स बहुत मैटर करता है. एंड और एक पॉइंट बोलना भूल गया, एंड इफ यू हैव एनी फ्रेंड्स और मेंटर्स, यू डिस्कस ईच ऑफ द केसेस विद देम. एनी सिंपल केस भी है, आपका देखने का नजरिया अलग रहेगा, मेरा नजरिया अलग रहेगा. So you discuss, मेरा प्लान ये है, what do you think, how to go about it? So once you go, maybe आपको कुछ दिखा नहीं रहेगा जो उन्होंने देख लिया होगा. शायद प्रोस्थेटिक स्पेस में थोड़ा मीजियली टिल्टेड है पोस्टीरियर, so you need to place the implant little more mesial, और क्राउन जब दे रहा है थोड़ा इनामेलोप्लास्टी. So that's how अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो we'll get to know a bit more. And then time is what you need to spend in any specialty you take. In dentistry, where it
ऐसे पॉइंट पे आ गए पूरा डिजिटली हम लोग काम कर रहे हैं. Right. Starting from impression to the end, we are not touching the cast also. So once we make the impression, we have सिर्फ क्रॉन प्रिपरेशन करना है. शायद वो भी अभी आगे जाके शायद रोबोट्स करेंगे. क्रॉन प्रिपरेशन जस्ट आपको बैठ के ऑन ऑफ करना है रोबोट को. शायद ये भी आ सकता है. Definitely, definitely. So we are coming to a digital era. So अभी ऐसे सिचुएशन पे so we need to spend some time and spend money also. ऐसे नहीं कि उस पे टाइम स्पेंड किया and इतना एडवांस आ रहा है अभी. So all this advancement we need to know. And when you discuss with others, you will get to know so many things. जैसे कि अभी आप रॉ एंड रियल कर रहे थे. That's how I got to know you. And you are doing very wonderful job. And अभी जो recent वर्कशॉप भी जैसे प्रैक्टिस मैनेजमेंट का हुआ, वन ऑफ माय जूनियर्स अटेंड किया था आपका वर्कशॉप को. तो ही वाज टेलिंग इट वाज वेरी गुड. एंड व्यूअर्स को भी बोलना है. आई थिंक नेक्स्ट अभी वीकेंड पे है. आई एडवाइज join Dr. Sagar's practice management. Thank you so much. I think you will gain a lot. Thank you sir, thank you. मैं चाह रहा हूँ आपसे कि आप सिर्फ इंडिया एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स आए या फिर ऑनलाइन चीजों को बताएं, क्योंकि जिस तरीके से डॉक्टर रवि बताते हैं कि आपने उनकी प्रैक्टिस एनहांसमेंट में हेल्प करी और प्रॉस्पेक्ट एनहांसमेंट में हेल्प करी. मैं भी आपसे टिप्स लेना चाहता हूँ, हमेशा लेता भी हूँ. तो ये सब चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जिसपे जैसे भी डॉक्टर रवि का कमेंट आया था, पीपल डोंट वांट टू स्पेंड मनी. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है. डेफिनेटली आप क्लिनिक से स्टार्टिंग में थोड़ा सा स्ट्रगल करके कमा रहे होते हो, बट पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि क्लिनिक पे इन्वेस्ट करने से ज्यादा आप अपने स्किल पे इन्वेस्ट करेंगे तो ज्यादा क्लिनिक बढ़ता रहेगा आगे. तो ये चीज बहुत कम लोग करते हैं. डॉक्टर रवि जैसे अटेंड करते रहते हैं, आपका भी मैं देख रहा होता कि आप भी लोगों से मिलते रहते हैं, अटेंड करते रहते हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. थोड़ा सा डिटेल सर आप बता दीजिए कि व्हेन यू आर कमिंग टू इंडिया एंड वेयर योर लेक्चर इज, सो दैट पीपल कैन नो. अगर आपके आसपास होंगे तो पीपल कैन अटेंड. थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए. अभी वर्कशॉप इज ऑन 21 and 22 मुंबई में है. इट्स कॉल्ड एस्थेटिक कॉन्क्लेव. डॉक्टर रवि एंड मी आर कंडक्टिंग. डॉक्टर रवि बात कर रहे हैं प्रैक्टिस मैनेजमेंट पे और फाइनेंशियल पार्ट पे, हाउ टू स्टार्ट एस्थेटिक प्रैक्टिस. ओके, सो दिस इज व्हाट ही विल बी कवरिंग A to Z. एंड देन मैं कवर कर रहा हूँ इनडायरेक्ट रेस्टोरेशन, सिरेमिक विनीर्स, इनलेस्ड, हैंड्स ऑन भी है इसके साथ में. Will be teaching different type of preparation, indirect preparation or putty index, different impression materials and technique, and temporization and finishing of the temporization also. So start to finish. 2-day workshop. I think participants will gain a lot from this, hopefully. Definitely sir, definitely. Thank you sir, thank you so much for the time. मैंने अभी डॉक्टर रवि को रिक्वेस्ट भेजी है थोड़ी देर बीच में आने के लिए, बट शायद वो अभी है नहीं यहाँ पे. और अभी बीच में मेरे पास कमेंट भी आया था, हम एक बार थोड़े से कमेंट्स देख लें लोगों के. पीपल शुड स्पेंड टाइम एंड मनी टू लर्न. डॉक्टर साबा अंजुम का कमेंट है. डॉक्टर रवि का है, पीपल डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन लर्निंग एंड स्टिल ब्लेम इंडस्ट्री इज बैड एंड हैज नो स्कोप. डॉक्टर रवि ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं बिलीव. और हमारे पास कमेंट और भी हैं. So just give me 2 minutes. I'll take 2 minutes of yours. वो सबसे तगड़ा कमेंट डॉक्टर रवि का कॉमेडी वाला कमेंट ही है. उनका कॉमेडी पार्ट बाहर आ जाता है. डॉक्टर रवि से मैं बहुत कुछ सीखा हूँ. The way he handles the patient, the way he convinces, all this matter. छोटे छोटे tips and tricks जैसे हुए. You both are doing well in practice management, and I'm very happy to be associated with you both. Trying sir, just trying our best कि प्रैक्टिस इंडिया में भी उस लेवल की हो जाए जिस लेवल की आप कुवैत में कर रहे हैं. तो डॉक्टर रवि इज हियर. डॉक्टर कपिल राठौड़ का मैसेज है, मस्ट अटेंड द कोर्स, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुफियान. हेलो डॉक्टर साहब. हाय, कैसे हो? वेरी नाइस कन्वर्सेशन, वेरी नाइस कन्वर्सेशन. बहुत अच्छा लग रहा था. मैं रेजिस्ट नहीं कर पाया. हम चाह रहे थे कि आप आए. नहीं, वेरी नाइस. बहुत अच्छा कन्वर्सेशन था दोनों जन का.
और डॉक्टर सागर को मैं देखता हूँ किसी और के साथ लाइव, तो मुझे लगता है मुझे तो आना ही चाहिए। राइट, सेम हियर, सेम रॉ हियर। रॉ एंड रियल बहुत अच्छा हुआ था। हमने काफी बहुत बिल्कुल अच्छा टाइम बिताया था, बहुत बात करी हुई थी। एंड से बिल्कुल। सो नाइस टू सी दैट रॉ एंड रियल, या हमारा जो अप्रोच है, थॉट है, गिविंग बैक टू डेंटिस्ट्री एंड गिविंग बैक टू डेंटिस्ट, जो भी हमें थोड़ा मोड़ा आता है, दैट हैज मेड अस यूनाइटेड। एंड शायद वही एक इनिशिएटिव है जो हम तीनों बैठे हैं, और शायद अपकमिंग टाइम पे और बहुत सारे लोग हमें ज्वाइन करेंगे। राइट, डॉक्टर ए के दास का मैसेज आया है, वो सॉरी कमेंट आया है। एक्चुअली सर, समटाइम्स ह्यूमिलिएशन लीड्स टू demoralization of the real zealful dentist who actually wants to learn, and eventually they got isolated. क्या कहेंगे डॉक्टर साहब? और एक और डॉक्टर सबा का मैसेज है। हेलो, हाय डॉक्टर सुफियान, डॉक्टर रवि, डॉक्टर सागर, हैप्पी टू सी ऑल टुगेदर। थैंक यू डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, थैंक यू। डॉक्टर ए के दास के कमेंट पे थोड़ा सा बताइए आप, हाउ डू यू हाँ, डील मुझे विद, और हाउ हैव यू डील विद द डीमोलाइजेशन, क्योंकि हम सबने ही वो झेली है। सी आपके अंदर है ना, जैसे मेरे अंदर मैं एक रवि है और एक डॉक्टर रवि है। सो जब भी डॉक्टर रवि डिमोरलाइज होता है, रवि अंदर से जाग उठता है और उसको समझाने की पूरी कोशिश करता है कि बॉस, आई मीन आपको किसी से compete नहीं करना है। आपसे लाख गुना अच्छे लोग हैं और आपसे लाख गुना पीछे लोग हैं। बुरे तो नहीं कहेंगे, बट पीछे लोग हैं, यू नो। मुझे अपने आप को अच्छों से भी कंपेयर नहीं करना है, बुरों से भी नहीं कंपेयर करना है। मुझे अच्छों से राइट। इंस्पिरेशन लेना है, मुझे अच्छों से सीखना है, यू नो। एंड मुझे अगर कंपेयर करना है तो मैं अपने आप से खुद को कंपेयर करूंगा कि आई शुड बी द बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ एवरी डे, एवरी डे। यस। तो हर रोज आप जरूरी नहीं कि आप डेंटिस्ट्री सीखो, आप कुछ ना कुछ सीखो, बिकॉज पेशेंट आपके पास आते हैं तो सिर्फ आपकी डेंटिस्ट्री देख के नहीं आते, वो आपको एज ए ह्यूमन राइट। बीइंग देखते हैं, यू नो। तो आप हर वो चीज के टुवर्ड्स अगर लर्निंग अप्रोच रखोगे तो आप आगे बढ़ोगे। और ये स्क्रीमर्स, मैं कहता हूँ ये स्क्रीमर्स हैं जो भी आपको डाउन फील कराते हैं ना, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, चाहे वो पेशेंट्स हो, चाहे आपके घर के कोई मेंबर ही क्यों ना हो, अगर आपको डिस्करेज कर रहे हैं या कोई भी चीज ऐसी कर रहे हैं जिससे आप लो फील कर रहे हो या आगे नहीं बढ़ रहे हो, उनको मैं स्क्रीमर्स का नाम देता हूँ और मैं कहता हूँ गेट अवे, गेट अवे, और उनसे दूर हटिए, और तो आप देखो कितना आगे प्रोग्रेस करोगे। तो बस दैट्स इट, आई थिंक दैट्स द मंत्र। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ, जैसे आप बोल रहे थे स्क्रीमर्स, दीज आर द पीपल हु इनडायरेक्टली मोटिवेट अस इन अ वे। जैसे वो हमको बोलते हैं, यस, हाँ ये तू कुछ नहीं कर पाएगा एंड तेरे से नहीं होगा, एंड ही डज दिस काइंड ऑफ वर्क, एंड मोर देन द मोटिवेशनल पीपल, आई थिंक वी नीड दिस ऑफ पीपल इन लाइफ। जब भी वो यस, एक बंदा काफी है ये बोलने के लिए, एंड वी विल बी लाइक रॉकेट। आई थिंक यस, दिस स्क्रीमर्स आर वेरी मच नीडेड, फिलर्स की जैसे बिल्कुल वी यस, नीड। वेरी बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। मैं डॉक्टर सागर, एक- इस पे मैं एक पॉइंट ये ऐड करूंगा कि लाइफ में एक चीज करना चाहिए हम हर किसी को, अगर कोई इंस्पायर हो तो ये पॉइंट ले सकता है कि सी, जैसे डॉक्टर सुफियान ने कहा, मैं एक्चुअली ये करता हूँ। जब भी जो मुझ पे यकीन नहीं करता, चाहे वो पेशेंट हो, चाहे यू नो, चाहे स्टाफ हो, चाहे कोई भी हो, अपने अंदर एक लिस्ट बना लेनी चाहिए हमें, यू नो, ऐसे लोगों के लिए, यू नो, कि हम वो शेयर मार्केट के वो शेयर है जो आज आपने जिसको है ना वैल्यू नहीं दिया और खरीदा नहीं, कल ये शेयर है ना टॉप पे होगा और अपर सर्किट करेक्ट। मारेगा, और तब आप शायद खरीद नहीं सकेंगे या साथ रहना अफोर्ड नहीं कर सकेंगे। तो आई थिंक दैट विल गिव यू पॉजिटिव एनर्जी। डॉक्टर सुफियान ने बहुत अच्छा पॉइंट था। बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर साहब, डॉक्टर सुफियान ने तो डिटेल्स दे ही दी, आप भी थोड़ा सा डिटेल दे दीजिए कि आप दोनों साथ में क्या प्रोग्राम करने वाले हैं, कैसा सब कुछ रहने वाला है, क्या कौन कौन सी डेट्स हैं, ताकि पीपल कैन नो कि कब ये होने वाला है। और अभी तो आप मुंबई में कर रहे हैं आई बिलीव, और मैं चाहूंगा कि हम ऑल ओवर इंडिया का ट्रिप कर सके सर के साथ। यस, जल्दी से जल्दी। इसी मैंने डॉक्टर सुफियान बस अब ये वर्कशॉप करने के पीछे सिर्फ एक ही एम था, ओनली वन एम, कि यू नो हमारे अंदर जो भी थोड़ा मोड़ा हमें आता है, लेट अस रीच टू अदर पीपल्स, अदर्स एज वेल। हमारा इंटेंशन इसमें से लिटरली अर्निंग नहीं है, बिकॉज अर्निंग होता तो हमने जितना अच्छा वेन्यू चूज किया है, 3 स्टार 4 स्टार जैसे होटल में 2 दिन का ब्रेकफास्ट, लंच एंड हाई टी के साथ हम 2 स्पीकर आके अगर बात कर रहे हैं,
एंड वी आर चार्जिंग मिनिमम ऑफ 10 to 15,000 के बीच में. सो आई थिंक जो भी अटेंड करते होंगे या जो लोग कंडक्ट करते होंगे उनको पता चलेगा कि इसके पीछे मोटिव या मोटो अर्निंग नहीं है. वी वांट टू क्रिएट, डेफिनेटली वी वुड वांट टू क्रिएट आवरसेल्फ एज अ ब्रांड. हम डेफिनेटली हम सब कहीं ना कहीं पहुंचना चाहते हैं. वैसे मैं एंड डॉक्टर सुफियान एंड डेफिनेटली डॉक्टर सागर हम सब पहुंचना चाह रहे हैं. मैं लोगों से ये बताना चाहता हूं कि आप ऐसा नहीं कि हमारा वर्कशॉप अटेंड करो, आप किसी का भी वर्कशॉप अटेंड करो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप एटलीस्ट अटेंड करो. बिकॉज क्या होता है, जब आप खुद के लर्निंग पे, जैसे डॉक्टर सागर कह रहे थे, अनटिल अनलेस यू डू नॉट इन्वेस्ट इन योर लर्निंग, आप आगे नहीं बढ़ सकते. आप आगे नहीं बढ़ सकते. सी एक एनर्जी होती है जब आप वर्कशॉप में जाते हो या कंडक्ट करते हो, तो वहां पे जो 10, 12, 15, 20 लोग होते हैं ना, उनके अंदर एक एनर्जी होती है, एक जील होता है आगे बढ़ने का, कुछ सीखने का. और हर एक की है ना एक सक्सेस स्टोरी होती है. आपके साथ आप देखोगे कोई 30 इयर्स के डेंटिस्ट भी होंगे और उसी वर्कशॉप में कोई 60 साल के डेंटिस्ट भी आपको दिखेंगे. और वो 60 साल के डेंटिस्ट अगर वो 30 साल के मेंटोर से सीखने आए हैं, मैं हेड्स ऑफ करता हूं ऐसे लोगों को. सो आप बहुत कुछ सीखते हो एक वर्कशॉप में. हम लोगों का एम यही था कि थोड़ा मोड़ा हमें जो भी आता है हम शेयर करेंगे. वर्कशॉप हमने इस सैटरडे संडे मुंबई जीसीसी क्लब मीरा रोड में है. बहुत ही नॉमिनल अमाउंट पे हमने उसको रखा है. जिस किसी को भी लगता है कि हम दो लोग हैं जो आपको थोड़ा बड़ा सिखा सकते हैं और अपनी नॉलेज शेयर कर सकते हैं, यू मोर देन वेलकम. एंड दैट्स इट. इससे ज्यादा और क्या कहना. वंडरफुल डॉक्टर साहब, वंडरफुल. ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं सर का, क्योंकि हमने जानबूझ के इसको छोटा डिसाइड किया था. बट जब भी हम छोटा डिसाइड करते हैं, लोगों के इंटरेक्शंस, प्यार, कमेंट की वजह से वो लंबा चल जाता है हमेशा की तरह. रॉ एंड रियल के कमेंट्स आज भी मेरे पास बहुत सारे आते हैं. कभी कोई कहता है कि सर ये वाला एपिसोड का मिलेगा, वो वाला एपिसोड का मिलेगा, उसमें जो हुआ था वो वाला एपिसोड का मिलेगा. लिंक सबके शेयर्ड हैं यूट्यूब पे, सारे एपिसोड्स हैं, पॉडकास्ट पे भी सारे एपिसोड्स हैं, आप सुन सकते हैं. और बहुत जल्दी कुछ ऐसा फिर से प्लान करेंगे, उसमें ही इतना इन्फॉर्मेशन है कि आपको 2 साल इम्बाइब करने में लगे, क्योंकि हमें तो वो 5 से 6 साल सीखने में लगे. तो अभी आप उसको जल्द से जल्द उसको अप्लाई करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस बेटर होगी. उतने दिनों में हम जो भी सीखेंगे आपसे शेयर करते रहते हैं. डॉक्टर रवि की वीडियोस आती रहती है. मैं अभी उतना एक्टिव नहीं हूँ, बट जल्दी उनसे इंस्पायर होकर एक्टिव होऊंगा. बाकी मिलते हैं डॉक्टर साहब. मेरे ख्याल से आप एंड करें तो अच्छा रहेगा. और एक चीज ऐड करना है, डॉक्टर कपिल ने बताया, आई हैव लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम डॉक्टर सुफियान. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, मैंने देखा था कमेंट. जैसे बोल रहा था, we need to discuss cases. इम्प्लांट में जैसे बोल रहा था, we need to discuss cases with your friends and seniors, and डॉक्टर कपिल is one of them. जैसे मैं सर्जिकल इम्प्लांट जैसे सीख रहा था, तो वी यूज्ड टू डिस्कस. मैं उनको पूछा था कि इम्प्लांट का पोजीशन कैसा है, इज इट फाइन, और ही यूज्ड टू गाइड मी. एंड प्रोस्थेटिक के लिए, सो वी वर डूइंग पीजी टुगेदर. So prosto and surgery department में, then we were interacting. That's how we learn from each other. Thank you, Dr. Kapil. And डॉक्टर सबा का मैसेज आया. डॉक्टर सबा का भी आया था. Looking forward for many more lecture and workshops to attend. Thank you, Dr. Sabha. Thank you for the support. Last में comment is, ma'am का need to update always. If not, we will be left behind in this updating world. Definitely. Exactly. Yeah, exactly. Dr. Ravi, all dentistry itself is very much interesting, and if you are loving dentistry, then there is so much to learn each and every day. जैसे हम लोग इधर सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, या फिर भी नहीं, there is so much of जैसे हमको मालूम भी है चीजें, we are improvising, pre-improvised yourself in whatever things you know. I think learn and relearn whatever you know. I would like to add one point over here is, yes, Dr. Kapil, Dr. Sufyan, मैंने डेंटिस्ट्री जो टेक्निकल पार्ट है वो इन दोनों से बहुत सीखा है. एंड आई एम श्योर कि हर किसी के लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग होते होंगे. यू नीड टू बी इन टच विथ योर फ्रेंड्स, विथ योर मेंटर्स, विथ योर सीनियर्स. बिकॉज जैसे हर रोज, आज हो सकता है आज हमने बात करी, अब कल हो सकता है कि मैंने कोई एक नई चीज सीखी है जो आप दोनों को नहीं पता है. और अगर हम कन्वर्सेशन नहीं करेंगे तो मैं वो चीज आप दोनों से शेयर कैसे करूंगा. हो सकता है डॉक्टर सागर ने और डॉक्टर सुफियान ने भी कोई एक और चीज सीखी हो, तो हम तीनों अगर कन्वर्सेशन करेंगे तो हम तीनों कुछ न कुछ नया सीखेंगे. यू नो, मेरे पास दिन के 8 घंटे 12 घंटे ही है सीखने के लिए, अगर हम एक्टिव टाइम पे हैं. सो आई थिंक इंटरेक्शन होते रहना चाहिए, इस तरह के लाइव होते रहने चाहिए, ओपन टू लर्निंग अप्रोच रखना चाहिए, और हर बार लोगों को फ्री में नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए.
दुनिया में जो बहुत सारी चीजें है ना वो फ्री नहीं होती। फ्री तो गूगल पे सब कुछ है यार। आप फ्री में तो लोग मेरे को लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे इतना मटेरियल अवेलेबल है कि आपको ये एलन मस्क कहते बच्चे हैं के रॉकेट बनाना सीख ले इंसान। रॉकेट बनाना हाँ, सीख सकते हो, आप बच्चे की डिलीवरी करा सकते हो, आप इतना नॉलेज है इतना यूट्यूब पे। राइट तो और जो बताने बट वो बताएगा कैसे करना है, एंड व्हाट आर दो स्मॉल 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 टिप्स एंड ट्रिक, और जो वेरी इंपॉर्टेंट चीजें जो है, एंड द वे यू टेल, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। राइट। यस डॉक्टर एक दास डॉक्टर का मैसेज आया है, वेरी वेल सेड एंड यू आर ऑल आर लाइक रियल सपोर्टिव पर्सनल फॉर मोस्ट ऑफ द राइजिंग डेंटिस्ट लाइक अस। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, पंजाब में थैंक यू सो प्रैक्टिस मच। करते हैं और बहुत ज्यादा मेहनत से प्रैक्टिस करते हैं। वो अपने केसेस भी मुझे शेयर करते हैं और आप दोनों को बहुत बहुत पसंद करते हैं। डॉक्टर कपिल थैंक यू राठौर, बी लाइक रेंचो, जहाँ से नॉलेज मिले बटोर लो। तो एग्जैक्टली। ऐसे मैसेज आते रहेंगे और इसको एंड करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर सभा इज we all need is to learn from each other. It's not about degree, it's all about knowledge. Free things doesn't have value. ऐसे मत बोलिए डॉक्टर साहब, रियल रॉ एंड रियल फ्री था हमारा, फ्री उसमें था। वैल्यू थी। सी लोगों के लिए फ्री था एक्चुअली। हमारे लिए हमने दुनिया में सबसे महंगी चीज जो है ना वो टाइम है, तो उसमें हमने सही बड़ा बात है, टाइम इन्वेस्ट किया है। ठीक है, अब जिसको बिल्कुल। सीखना है ना वो भी अपना टाइम इन्वेस्ट करे, बट हर बार जब हम अवेलेबल हो जरूरी नहीं कि वो अवेलेबल रहे। बहुत कम अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं आपको आपके मेंटोर से सीखने के लिए, और जब राइट आपको उनसे सीखने का मौका मिलता है यू शुड इन्वेस्ट, बिकॉज हमने भी इन्वेस्ट किया है और तब हमने सीखा है। तो इट्स ओके, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और हम देंगे भी। बट अगर आप ये नॉलेज लेके वो क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सागर प्रैक्टिस मैनेजमेंट का आप फ्री में क्यों नहीं चालू करते, बट डोंट यू थिंक ये जस्टिफाइड नहीं होगा अगर आप किसी को कोई एक ऐसा नॉलेज दे रहे हो जिससे उनकी इनकम बेटर होगी, उनकी इनकम बेटर होगी, राइट ठीक है, राइट। लेकिन आप अपना इनकम का जो टाइम है वो आप सेक्रीफाइस कर रहे हो। सो दैट इसका आई थिंक दैट सिंपल इज नॉट। एग्जांपल देखिए, सिंपल एग्जांपल ये है कि कितने कंपनीज वाले आते हैं और बोलते हैं कि सर हम फ्री लेक्चर रख रहे हैं जिसमें आपको लंच भी प्रोवाइड करेंगे, और वहां पे सबसे कम डॉक्टर्स मुझे मिलते हैं। और जहां पे एग्जैक्टली एक वैल्यू होती है, अब रॉ एंड रियल हम फ्री भी कर रहे थे, बट स्टिल देयर वर सो मेनी बिग नेम्स ऑफ इंडिया। डॉक्टर रजत सचदेवा, डॉक्टर सुफियान वाज देयर, डॉक्टर कपिल वाज देयर, डॉक्टर रितु वाज देयर, और ऐसे ऐसे नाम भी थे जो डॉक्टर स्वप्निल वर्म थे, हमें ज्वाइन कर लेते थे इतनी बिजी शेड्यूल में भी। तो फ्री हो चाहे वैल्यूएबल हो, वहां पे तो इंसान आएगा ही, बट फ्री की चीज को आप वैल्यू नहीं कर पाते हैं इतना जितना आप एक वैल्यूएबल चीज को वैल्यू कर पाते हैं पेड मेरे वाली ख्याल से। सिंपल एग्जांपल है, अगर एक पेन है जिसका कॉस्ट 2 रुपीज है, और अगर आप मुंबई में लोकल ट्रेन से लोग फेमिलियर है, तो अगर आप ट्रेन में घुसते हो और अगर 2 रुपए वाली पेन है ना, तो ऐसा किस्सा मुझे किसी ने बताया था जो मैं नरेट कर रहा हूँ, तो यू वोंट बी दैट कॉशियस, अरे 2 रुपए का पेन है छोड़ना जाएगा तो जाएगा। बट अगर वहीं पे आप 1000 रुपीज की अगर आप कोई फाउंटेन पेन या पार्कर पेन रखते हो ना, तो आप पहले जेब पे हाथ रखोगे, भाई कुछ भी हो ना पेन चोरी नहीं होना चाहिए, बड़ा महंगा है। सो दैट इज द अप्रोच। जब आप इन्वेस्ट करते हो ना, आपकी लर्निंग पे इन्वेस्ट करते हो, तो आप उसको वैल्यू करते हो। आई मीन दिस इज व्हाट आई थिंक। एंड मुझे किसी ने कहा था कि आप कहीं भी आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो, आप कोई भी चीजों पे इन्वेस्ट करो, हो सकता है वो चीज आपकी खो जाए और आप जिंदगी में वापस उसको नहीं पा सको, लेकिन अगर आप अपने आप पे इन्वेस्ट करते हो, तो आपने दुनिया में चाहे जितना भी कमाया हो, वो अगर आप खो भी दोगे ना, तो आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज आपने खुद पे इन्वेस्ट किया था। एंड आपने खुद पे जो इन्वेस्ट किया था ना, वो जनरेशंस टू जनरेशंस आप पास ऑन कर सकते हो। यू नो, अपनी अपकमिंग जनरेशन, अपने बच्चों को, अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को, अपने फील्ड के लोगों को आप पैसा नहीं देके जाओ चलेगा, बट कुछ नॉलेज में देके जाओ, और वो नॉलेज तभी आएगा जब आप सीखोगे, और हर वो चीज यूट्यूब से नहीं मिल सकती। दैट इज माई पॉइंट। राइट राइट। आई एम सॉरी, बहुत बढ़िया conversation मैंने डॉक्टर ज्यादा फुटेज ले लिया। अरे नहीं डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। और थैंक यू। कन्वर्सेशन में ऐसे ही चाहता था जैसे हुई, और देयर आर पीपल ज्वाइनिंग इन। शायद 10 पे अभी स्टार्टेड एंड इट्स 15 नाउ, और मुझे पता है कि थोड़ी देर हम और बात करेंगे तो इट विल बी 50। सो आई बिलीव वी शुड एंड दिस नाउ, यस और लेट्स यस बी शॉर्ट एंड 50, and this conversation will be on my YouTube channel definitely, and Instagram page, Facebook page, everywhere, so people can learn.
ठीक है डॉक्टर साहब, आपसे Thank you, मुलाकात Dr. तो शायद Sagar. इस टाइम मेरी ना Thank पाए, you. Thank you but so much, I would everyone, love for joining and to. spending your valuable time. And thank you, Dr. Ravi and Dr. Sagar also. Thank you so much, guys. Bye. See you. See you. Bye bye. 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 Bye.